حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی، اس غلطی کے نتائج ان کے لیے تباہ کن ہوں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے نئی شرائط طے کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر تسلیم نہ کیا اور ان کے مظالم کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی اسلامی لشکر کے ایک حصے کے سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ معافی اور نرمی کا سلوک کریں، اس وقت تک خود حملہ نہ کریں جب تک ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ وہ فوراً کعبے کی طرف بڑھے۔ کعبے میں مشرکین نے عبادت کے لیے ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان بتوں کو توڑنے اور کعبے کے نواح سے بت پرستی کی نشانیاں مٹانے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر فرمایا، لوگو، آج کے دن تم آزاد ہو، تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان ہیں۔ جن لوگوں کے لیے آج عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، کل انہی لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور ہر قسم کی زیادتی کی تھی، زیادتیاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا اسلام کا پرچم مکے کی ہر عمارت پر لہرا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ ایسا منظر اس سرزمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالد بن ولید دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی تھی۔ خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک رہے۔ انہوں نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہر جہاد میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد محسوس کیا کہ قبیلہ حوازن اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان لوگوں پر چڑھائی کی اور انہیں سبق سکھایا۔ خالد بن ولید اس غزوے میں بھی شریک رہے۔ وہ عرب قبائل کو اسلام کے دائرے میں لانے کی تگ و دو کرتے رہے۔ مکے کے ارد گرد کے قبائل پر غلبہ پانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے اور حج کی تیاری شروع کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1,00,000 سے زائد مسلمان حج ادا کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت غور سے سنا اور سمجھ گئے کہ آپ کی رحلت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ حج کے سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بہت اداس تھے۔ انہیں اس بات کی گھبراہٹ تھی کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت نہ فرما جائیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور قیادت کی ابھی بہت ضرورت تھی۔ آخر کئی روز کی علالت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ خالد بن ولید بھی دوسروں کی طرح بہت غمزدہ تھے۔ آخر کار سب نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ ہر انسان کو ایک دن یہ عارضی زندگی چھوڑ کر دوسرے جہاں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ دوسری طرف عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے۔ چند افراد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے مدینے کی مرکزی حکومت کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر نے مرتدوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ فرمایا۔ ان سے مقابلے کے لیے ایک فوج تیار کی۔
तुलैहा बिन खुवैलद वो नाहंजार शख्स था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार होने की खबर सुनते ही नबूवत का दावा कर दिया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद को पहले उसकी तरफ रवाना किया। आप मंजिल पर पहुंचे और तुलैहा और उसके पैरोकारों को शिकस्ते फाश दी। खालिद बिन वलीद इसके बाद मदीना तैयबा पहुंचे। सिद्दीक अकबर ने मुहाजिरीन और अंसार के एक लश्कर को उनकी क़ियादत में दिया और मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में रवाना किया। ये भी झूठी नबूवत का दावेदार था और उसने अपने गिर्द बेशुमार मुर्तद जमा कर लिए थे। गोया एक लश्कर उसके साथ था। सैयदना खालिद बिन वलीद से पहले इक्रिमा बिन अबी जहल और शुराबील बिन हसना की फौज मुसैलमा से शिकस्त खा चुकी थी। मुसैलमा को खालिद बिन वलीद की आमद का पता चला तो वो उनके मुकाबले में 40,000 का लश्कर लेकर मैदान में आया। दोनों फौजें आपस में टकराईं। घुमसान का रन पड़ा। जबरदस्त जंग हुई, लेकिन मुसैलमा के लश्कर में किसी कमजोरी के आसार नजर न आए। आखिर सैयदना खालिद बिन वलीद ने एक जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। पूरे लश्कर को कबाइल की बुनियाद पर तकसीम किया। हर कबीले का एक कमांडर नामजद किया और सबसे फरमाया, जान तोड़कर लड़ना। अब मैं देखूंगा कि कौन सा कबीला जंग में पसपाई इख्तियार कर रहा है और कौन सा पेश कदमी कर रहा है। इस तरह हर कबीले ने बेजिगरी से मुकाबला किया। इस तरह मुसैलमा की फौज के पांव उखड़ गए। वो पसपा होते होते एक बाग में दाखिल हो गया। बाग के गिर्द मजबूत चार दीवारी थी। अंदर दाखिल होते ही मुर्तदों ने बाग का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा इंतहाई मजबूत था, उसको तोड़ना आसान नहीं था। दूसरी तरफ दीवार बहुत ऊंची थी, उसको फलांग जाना भी मुमकिन नहीं था। मुसलमानों ने बाग को चारों तरफ से घेर दिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा न टूटा। ये सूरत हाल देखकर एक सहाबी सैयदना बरा बिन आजिब ने जज्बे जिहाद से सरशार होकर अपने साथियों से कहा, मुझे उठाकर दीवार के ऊपर से बाग में फेंक दो। मुसलमानों ने ऐसा ही किया। उनको हाथों और पैरों से पकड़कर झूला दिया और उछाल दिया। ये दीवार के ऊपर से होते हुए ऐन दरवाजे के दूसरी तरफ बाग के अंदर गिरे। ये निडर, फुर्तीला, बहादुर, जफाकश और जांबाज सहाबी फजा में लहराता बाग में गिरा तो मुसैलमा की फौज में भगदड़ मच गई। उन्होंने ख्याल किया कि न जाने आसमान से क्या बला नाजिल हुई है, लेकिन सैयदना बरा बिन आजिब ने फौरन दरवाजा खोल दिया। दरवाजे का खुलना था कि लश्कर इस्लाम नारे तकबीर लगाता हुआ दुश्मन पर टूट पड़ा। एक बार फिर घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब वाशी बिन हर्ब के हाथों मारा गया। ये वही वाशी बिन हर्ब हैं जिनके हाथों ग़ज़वा उहुद में सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा ने जामे शहादत नोश फरमाया था। इसके बाद ये वाशी बिन हर्ब मुसलमान हो गए थे और आज उनके हाथों इस्लाम का ये बदतरीन दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। इसके अलावा उसकी फौज के करीबन 1000 अफराद भी मारे गए। बाग के अंदर हर तरफ लाशें दिखाई दे रही थीं। इसके बाद उस बाग का नाम हदीक़तुल मौत यानी मौत का बागीचा मशहूर हो गया। इस जंग को जंगे यमामा कहा जाता है। सरजमीन इराक पर सैयदना खालिद बिन वलीद की क़ियादत में पहली जंग ज़ातुस सलासिल लड़ी गई। इसे जंगे हुज़ैर भी कहा जाता है। हुज़ैर खलीज फारिस के करीब वाक़ है। मदीने से बसरा जाते हुए पहले हुज़ैर आता है। यहाँ का हाकिम हुरमुज था। ये ईरान की हुकूमत के मातहत था। उसकी टोपी में हीरे जड़े हुए थे। सैयदना खालिद बिन वलीद 10,000 मुजाहिदीन के साथ इराक की जानिब रवाना हुए। इराक की सरहद पर पहुंचे तो सैयदना मुसन्ना बिन हारिसा 8,000 मुजाहिदीन के साथ उनसे आ मिले। अब खालिद बिन वलीद ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया।
ایک حصے کا سالار مسنہ بن حارثہ کو، دوسرے کا عدی بن حاتم کو مقرر کیا، تیسرے حصے کی قیادت خود اپنے ہاتھ میں لی۔ ادھر ہرمز نے اپنی فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ دائیں اور بائیں حصے پر شاہی خاندانوں کے جفاکش شہزادے بطور سالار مقرر کیے۔ میدان جنگ میں جمے رہنے کے لیے تمام فوجی جوانوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا۔ عربی میں زنجیروں کو سلاسل کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے سیدنا خالد بن ولید نے ایرانیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کے انکار پر آخر جنگ کا آغاز ہوا۔ ہرمز کی فوج نے اس میدان میں پہلے پہنچ کر دریا پر قبضہ کر لیا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو صحرا کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہاں سورج آگ اگل رہا تھا۔ آخر کار وہ کاظمہ نامی مقام پر پہنچ گئے۔ اس طرح انہوں نے دشمن کو پانی کے چشمے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آخر دشمن سے ٹکراؤ ہوا۔ ہرمز ان کے مقابلے میں آیا۔ خالد بن ولید نے اس پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ اپنے ہی خون میں نہا کر گھٹنوں کے بل گرا۔ ہرمز کے قتل سے ایرانی فوج کا جوش جاتا رہا۔ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پرجوش حملوں کی تاب نہ لا کر وہ منتشر ہو گئے۔ فارسیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار فارسیوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس طرح انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس جنگ کی نمایاں بات یہ تھی کہ خالد بن ولید نے دشمن کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا اور انہیں اپنی حکمت عملی کے تحت لڑنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کے بعد انہوں نے مدینے میں مال غنیمت میں شامل ایک ہاتھی بھی بھیجا۔ مدینے کے لوگوں نے زندگی میں پہلی بار ہاتھی دیکھا۔ وہ اس قدر ڈیل ڈول والے عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس لڑائی میں ہرمز کی ایک ٹوپی بھی ہاتھ لگی۔ اس ٹوپی میں نہایت بیش قیمت ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ ٹوپی سیدنا خالد بن ولید کے حصے میں آئی۔ اس کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا۔ وہ قریباً 1,00,000 درہم کی ثابت ہوئی۔ پے در پے فتوحات نے جہاں کفار کے اندر ہلچل مچا دی تھی، وہاں مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند کر دیے تھے۔ مسلمانوں کا سیل رواں کسی کے روکے رک نہیں رہا تھا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی تاریخ کا تابناک ترین دور تھا۔ ہیرا اور اب اللہ کے درمیان دریائے فرات کے کنارے الیس نامی علاقہ ہے۔ عراق میں آباد عرب قبائل نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ یہ قبائل مسلمانوں سے پے در پے شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بکھرے ہوئے تھے، چنانچہ اس علاقے میں جمع ہوئے۔ ادھر سیدنا خالد بن ولید نے اس مقام پر پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا۔ دشمن کے لشکر میں نامی گرامی شاہ سوار مالک بن قیس موجود تھا۔ وہ آپ کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن فوج پر ہیبت طاری ہو گئی۔ لشکر کے لیے کھانا تیار تھا، لیکن ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ کھانا میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس کھانے میں سفید چپاتیاں تھیں جن سے مسلمان ناآشنا تھے۔ انہوں نے ایسا کھانا پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا اور انہیں کاٹتے چلے گئے۔ اس لڑائی کو جنگ الیس کہتے ہیں۔ کافروں کے 70,000 کے قریب آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید ہیرا کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب قبائل کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہیرا پر قبضہ کیا جائے، اس لیے اس عظیم جرنیل نے ہیرا کا رخ کیا۔ یہ علاقہ بھی دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے کشتیوں کے ذریعے راستہ طے کیا۔ ادھر ہیرا کے گورنر کو اسلامی لشکر کی پیش قدمی کا علم ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کی کمان میں بہت سے جنگجو روانہ کیے
ताकि मुसलमानों की पेश कदमी को हीरा से पहले ही रोक दिया जाए। गवर्नर का बेटा खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आया। वो उनके हाथों कत्ल हुआ। बेटे के कत्ल की खबर सुनकर गवर्नर घबरा गया और किले में बंद हो गया। हीरा में बहुत मजबूत और आलीशान किले तामीर किए गए थे ताकि जरूरत के वक्त उनको अपनी हिफाजत के लिए काम में लाया जाए। लिहाजा अहले हीरा मुजाहिदीन से खौफजदा होकर किले में चले गए। मुजाहिदीन ने भी किले का मुहासरा कर लिया। एक दिन और एक रात मुहासरा जारी रहा। आखिर किसी तरह चंद मुजाहिदीन किले में दाखिल हो गए। अहले हीरा पहले ही हौसला हार चुके थे, इसलिए सुलह पर आमादा हो गए। उन्होंने सालाना 1,90,000 दिरहम जिज़िया अदा करना कबूल किया और ये भी तय हुआ कि अहले हीरा मुजाहिदीन के लिए ईरान के खिलाफ जासूसी की खिदमत अंजाम देंगे। तय पाया कि मुजाहिदीन उनकी इबादतगाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सैयदना खालिद बिन वलीद ने 1 साल हीरा में क़याम किया। इस 1 साल के अरसे में इर्द गिर्द फौजी दस्ते भेजकर नुमाया कामयाबियां हासिल की। सैयदना खालिद बिन वलीद की देरीना ख्वाहिश थी कि इस्लामी रियासत की शिमाली सरहदों पर रोमियों का कला कमा किया जाए। चुनाचे उन्होंने 36,000 का लश्कर जमा किया। दिलेर और तजर्बाकार सालारों को उसकी क़यादत सौंपी। लश्कर को कई दस्तों में तकसीम किया। उन्हें हुक्म दिया कि अलग अलग दस्तों की सूरत में आगे बढ़ें और यरमूक के मकाम पर जा मिलें। इस्लामी लश्कर जब तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक यरमूक के मकाम पर जमा हुआ तो पता चला कि उनके मुकाबले में 2 लाख का लश्कर सफारा हो चुका है। इस्लामी लश्कर के सालारों ने आपस में मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि दानिशमंदी का तकाजा यह है कि खलीफा को इस सूरत हाल की इत्तला दी जाए। मदीने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने खालिद बिन वलीद की तरफ कासिद रवाना किया। वो उस वक्त इराक के महाज पर थे। कासिद के जरिए उन्हें खलीफा का पैगाम मिला कि वो शाम पहुंचकर रूमियों के खिलाफ इस्लामी लश्कर की क़यादत करे। खालिद बिन वलीद रवाना हो गए। उनका सफर बहुत मुश्किल था। सहरा में से सफर करते हुए वो अपने 8,000 सिपाहियों के साथ आखिर यरमूक में मौजूद इस्लामी लश्कर से जा मिले। उन्होंने एहतियात से सूरत हाल का जायजा लिया। लड़ाई का बाकायदा मंसूबा तैयार किया। उन्होंने देखा कि इस्लामी लश्कर 4 सालारों के तहत बटा हुआ है। इस वजह से एक मुत्तहिदा जंग लड़ना मुश्किल होगा। उन्होंने सालारों से मशवरा किया। उन्हें कायल किया कि सब दस्ते इकट्ठे कर लें ताकि कामयाब लड़ाई लड़ी जा सके। उस वक्त उन्होंने फौज के सामने ये तकरीर की, हमारा आज का दिन अल्लाह के लिए वक्फ है। दुश्मन पर फख्र या गुस्से के इजहार का कोई फायदा नहीं होगा। इखलास के साथ इस जिहाद में हिस्सा लो और अल्लाह की खुशनूदी के हकदार बन जाओ। अपने साथियों से उन्होंने ये दरखास्त की कि पहले रोज फौज की कमान उन्हें संभालने दी जाए। सब सालार उनकी कमान पर रजामंद हो गए। जंग शुरू होने से पहले रूमी सालार हामान ने खालिद बिन वलीद से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। वो मुलाकात के लिए तैयार हो गए। हामान ने उनसे कहा, हमारे इल्म में ये बात आई है कि तुम गुर्बत की वजह से अपने मुल्क से निकल आए हो। तुम चाहो तो मैं तुम में से हर एक को 10 दीनार कपड़े और खुराक दे सकता हूं। शर्त यह है कि अपने मुल्क में वापस चले जाओ। अगले साल भी मैं तुम्हें इसी कदर इनाम दूंगा। उसकी बात सुनकर खालिद बिन वलीद ने कहा, ये गुर्बत नहीं जो हमें यहां लाई है, बल्कि हम तो तुम्हारा खून पीना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि तुम्हारा खून लजीज तरीन है। ये कहकर खालिद बिन वलीद अपनी फौज में वापस आए। उन्होंने मैदान जंग का जायजा लिया और रूमियों के लश्कर जर्रार का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज को दस्तों में तकसीम करके सफबंदी की।
यरमूक में जब तलवारें तलवारों से टकराईं तो फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। सर कट कट कर गिरने लगे। इंसानी जिस्म घोड़ों के सुमों तले कुचले जाने लगे। दोनों फौजें सारा दिन लड़ती रहीं। शाम को अपने पड़ाव में चली गईं। दूसरे दिन इस्लामी लश्कर ने रूमी फौज के कल्ब पर हमला किया और उनकी सफें दरहम बरहम कर दी। बिलाखिर रूमियों के पांव उखड़ गए। उन्होंने पीठ दिखाई और भागने लगे। मुसलमानों ने ताकुब किया और उन्हें गाजर मूली की तरह काटते चले गए। बहुत दूर तक पीछा करने के बाद लौटे। रूमियों का बेपनाह नुकसान हुआ। रुस्वाई अलग पल्ले पड़ी। ये बात भी नहीं कि खालिद बिन वलीद सिर्फ एक जंगजू थे, वो इस्लाम की अजमत का एक निशान भी थे। सच्चे मुसलमान थे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हर काम करते थे। उनकी जिंदगी में एक नाजुक लम्हा आया था, लेकिन वो उस वक्त भी एक खरे मुसलमान ही साबित हुए। यरमूक की ये लड़ाई हो रही थी। जंग का मैदान गर्म था। ऐसे में मदीने से एक कासिद आ पहुंचा। उसने लश्कर में मौजूद सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह को खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इंतकाल कर गए हैं और सैयदना उमर बिन खत्ताब मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए हैं। उन्होंने खालिद बिन वलीद को लश्कर की कमान से माजूल कर दिया और आपको उनकी जगह सिपाह सालार मुकर्रर किया है। सैयदना अबू उबैदा ने खत उस वक्त तक खुफिया रखा जब तक कि जंग खत्म न हो गई। जंग के खत्म होने पर वो सिपाह सालार के पास गए। वो खत उन्हें दिया। उन्होंने खत पढ़ा और पूछा, ये खत कब आया था? अबू उबैदा ने उन्हें बताया कि ये खत उन्हें उस वक्त मिला था जब जंग उरूज पर थी। उन्होंने पूछा, आपने खत मुझे उस वक्त क्यों न दिया? अबू उबैदा ने कहा, वो वक्त खत देने के लिए मुनासिब नहीं था। सैयदना खालिद बिन वलीद ने उनकी तारीफ की, आगे बढ़कर उनकी पेशानी चूम ली। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उन्होंने उसी वक्त फौज की कमान उनके सपुर्द कर दी। फिर उनकी क़यादत में एक सिपाही की हैसियत से लड़ते रहे। पहले की तरह कुफ्र के खिलाफ जिहाद में सरगर्म रहे, यहां तक कि मुसलमानों ने फलस्तीन और उर्दुन के तमाम इलाके फतह कर लिए। उन्होंने रूमियों को उन इलाकों से निकाल बाहर किया। रूमी बादशाह हिरकल को अपनी फौज की इबरतनाक शिकस्त की खबर मिली तो वो अपने फौजी पड़ाव हिम्स को छोड़कर वापस कुस्तुनतुनिया चला गया। उसने शाम को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। यरमूक की लड़ाई में एक दिलचस्प वाकया ये पेश आया कि एक रूमी जर्नैल जर्जा ने सैयदना खालिद बिन वलीद से कहा, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे नबी पर आसमान से कोई तलवार नाजिल हुई थी जो उन्होंने तुम्हारे हाथ में थमा दी और तुम्हें सैफुल्लाह कहा जाने लगा? इस पर सैयदना खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए एक रसूल भेजा। हम में से बाज ने उनकी तस्दीक की और दिलो जान से उनका साथ दिया। उनकी मोहब्बत का दम भरा, उनके हर हुक्म के सामने सर झुका दिया, जबकि बाज ने उनकी मुखालिफत पर कमर बांध ली। पहले मैं भी ऐसे लोगों में शामिल था। फिर अल्लाह ताला ने मेरा दिल इस्लाम की तरफ माइल कर दिया। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद तू अल्लाह की तलवार है, तुझे अल्लाह ने काफिरों का कला कमा करने के लिए बनाया है। सो इस तरह मेरा नाम सैफुल्लाह मशहूर हो गया। रूमी जर्नैल हामान ने पूछा, तुम किस चीज की तरफ दावत देते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ बुलाते हैं। उसने फिर पूछा, अगर आज कोई शख्स इस्लाम ले आए तो क्या वो अज्र और सवाब में तुम्हारे दरजे और मकाम को पहुंच सकता है? ये सुनकर खालिद बिन वलीद ने फरमाया, यकीनन मुझसे भी 2 हाथ आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर रूमी जर्नैल ने फौरन कहा, तब फिर मुझे भी मुसलमान कर ले। खालिद बिन वलीद को उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई।
उसे गुस्ल करने की हिदायत दी। गुस्ल के बाद उसे कलिमा-ए शहादत पढ़ाया। उसने 2 रकत नमाज अदा की, अपनी फौज पर लानत भेजी, फिर इस्लामी लश्कर में शामिल होकर बेजिगरी से लड़ता रहा, यहां तक कि जामे शहादत नोश कर गया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने बस यही 2 रकत अदा की। अजीब खुशकिस्मत इंसान था। इस लड़ाई के दौरान मुजाहिदीन का जज्बा जिहाद और शहादत का शौक देखने के काबिल था। सैयदना इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु अन्हु जोश और जज्बे के आलम में बोले, मैं इस्लाम कबूल करने से पहले किसी भी मार्के में पीठ फेर कर नहीं भागा, तो आज इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में कैसे भाग सकता हूं। साथियों, आओ शहादत का शौक दिल में बसाकर आगे बढ़ें। ये कहा और चंद साथियों के साथ दीवाना वार दुश्मनों की सफों को चीरते हुए रूमी लश्कर के ऐन दरमियान में पहुंच गए। इस तरह दुश्मन के नरगे में आ गए, बला की तेजी से तलवार चलाने लगे, दुश्मनों को काटते चले गए। उन पर भी चारों तरफ से तलवारें बरस रही थीं। आखिर जामे शहादत नोश करके बहिश्ते बरी में पहुंच गए। खालिद बिन वलीद ने काफिरों के खिलाफ बेशुमार जंगें लड़ी, इस्लाम के लिए अपना सब कुछ वक्फ कर दिया। तमाम तर तजर्बे और जहानत से काम लेते हुए अल्लाह का नाम बुलंद करने की हर मुमकिन कोशिश की, और ऐन उन दिनों में जबकि उनकी सिपा सालारी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, जब उनकी जंगी तदबीरें अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा रही थीं, जब वो फुतूहात पर फुतूहात हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और उनके आगे बांधा जाने वाला हर बंद घास फूस की मानिंद उड़ता चला जा रहा था, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म उन्हें मिलता है। खत के अल्फाज थे, आपको इस्लामी लश्कर की सिपा सालारी से माजूल किया जाता है। ये खबर छोटी सी खबर नहीं थी। ये खत कोई मामूली खत नहीं था। एक ऐसे जबरदस्त अजीम सिपा सालार की माजूली का हुक्म था जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से सैफुल्लाह का खिताब दिया था। इस खत में उनकी माजूली का हुक्म था। उस अल्लाह के बंदे ने इस हुक्म को इंतहाई सब्र, सुकून और रिजामंदी से कबूल किया। शिकायत का एक लफ्ज भी उसकी जुबान से न निकला। मालूम हुआ कि वो तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे थे, सिपा सालारी के लिए नहीं, नामो नमूद के लिए नहीं। सिपा सालारी से माजूल होने के बाद उन्होंने ये नहीं किया कि सब कुछ छोड़कर अपने घर आ गए। उन्होंने एक सच्चे मुजाहिद की हैसियत से इस्लाम के दुश्मनों से लड़ाई फिर भी जारी रखी। सैयदना उमर फारूक से जब इस हैरत अंगेज और अनोखे फैसले के बारे में पूछा गया, उनसे सवाल किया गया, आपने खालिद बिन वलीद को क्यों माजूल कर दिया, तो आपने जवाब दिया, मैंने खालिद बिन वलीद को किसी गलती या जुर्म की सजा के तौर पर माजूल नहीं किया, बल्कि मैंने ये फैसला इसलिए किया कि मुसलमान कहीं ये गुमान न कर लें कि इन्हें फतूहात खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही हैं। फतूहात हमें अल्लाह ताला की मेहरबानियों से हो रही हैं। बहरहाल सिपा सालारी छोड़कर एक आम सिपाही की हैसियत से लश्कर में शामिल रहना और इस्लाम के दुश्मनों से जंग जारी रखना उनका एक नाकाबिले फरामोश कारनामा है। तारीख ऐसी मिसालें पेश करने से कासिर है। ये अजीम जर्नैल अपनी जिंदगी में शहादत की तमन्ना करता रहा, जिंदगी भर दुश्मन से लड़ता रहा। उसके जिस्म पर कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म का निशान मौजूद न हो, लेकिन अल्लाह की कुदरत शहादत की मौत उनके नसीब में नहीं थी। दुश्मन जिसका नाम सुनकर कांप जाता था, वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हिम्स शहर में बिस्तर पर लेटा था और आंसू बहाते हुए गमगीन अंदाज में कह रहा था, अफसोस, आज मैं बिस्तर की मौत मर रहा हूं। अल्लाह की कसम, मैंने शहादत के शौक में बेशुमार जंगें लड़ी। मेरे बदन का कोई जोड़, कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर तीर या तलवार के जख्म का निशान न हो, लेकिन मुझे शहादत की मौत न मिल सकी। और इन अल्फाज के साथ ही उनकी रूह परवाज कर गई।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके इंतकाल की खबर जब अमीरुल मोमिनीन सैयदिना उमर फारूक को मिली तो आप बहुत रंजीदा हुए, और जब आपको पता चला कि उन्होंने एक घोड़ा और जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के सिवा पीछे कुछ नहीं छोड़ा तो आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए और फरमाया, खालिद वाकई अजीम इंसान था। उनका जनाजा उठाया गया तो वालिदा ने गम में डूबे हुए लहजे में कहा, मेरे बच्चे, तू बिलाशुबा हजारों में एक था, शेर से बढ़कर दिलेर था और दरिया से बढ़कर सखी था। तूने उम्मत मुस्लिमा का दिफा उसी तरह किया जिस तरह शेर अपने बच्चों की हिफाजत करता है।